हेलो फहद, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस, आई एम ऑडिबल। हेलो सर, मसीरा, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? सर। ओके डियर स्टूडेंट्स, actually this is the fourth lecture on this topic, differentiation. In the previous three lectures I have discussed the definition of derivative. Means I have discussed the differentiability and continuity of the function at a point. A function f is said to be differentiable at a point if right hand derivative is equal to left hand derivative, and if right hand limit and left hand limit and value of the function is equal, then we can say that the function is continuous at a point. Also discuss one theorem: differentiability implies continuity. Means if the function is differentiable at a point, definitely it must be continuous at that point, है ना? डेरिवेटिव की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया, कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया, उसके साथ साथ हमने एक थ्योरम भी डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, यानी जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक पॉइंट के लिए, वो फंक्शन वो पॉइंट के लिए 100% कंटिन्यूस होगा। फिर उसके बाद मैंने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक न्यू फंक्शन को डिफाइन किया था, हाइपरबोलिक फंक्शन। Hyperbolic sine, hyperbolic cos, hyperbolic tan, in this way. Hyperbolic sin x is nothing but it is equal to e to the power x minus e to the power minus x divided by 2. Similarly, hyperbolic cos x is equal to e to the power x plus e to the power minus x divided by 2. And I also discuss some standard results. कुछ standard results भी discuss किया था मैंने. Hyperbolic sine of minus x is equal to minus hyperbolic sine of x. Hyperbolic cos of minus x is equal to hyperbolic cos of x. Again, hyperbolic cos square x minus hyperbolic sine square x is equal to 1. Hyperbolic sine of 2x is equal to hyperbolic sine x into hyperbolic cos x. All these standard results I have discussed in the previous lecture. Now, today I will discuss on the derivative of hyperbolic function. यानी hyperbolic functions का derivative कैसा निकालते हैं? हमने आपको मालूम है trigonometric functions के derivative of sin x is cos x, derivative of cos x is minus sin x, derivative of tan x is sec square x, है ना? Now today I will discuss on the derivative of hyperbolic function. Let us start. Now see, let us find the derivative of hyperbolic sin x. If y is equal to hyperbolic sin x, x is any real number, then find dy by dx. dy by dx आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है हाइपरबोलिक sin x का। डेफिनेशन के हिसाब से पहले y की हाइपरबोलिक sin x की वैल्यू लिख देंगे हम। y is equal to hyperbolic sin x. Hyperbolic sin x is nothing but e to the power minus x, e to the power x minus e to the power minus x divided by 2. हमको मालूम है इसकी वैल्यू है हाइपरबोलिक sin x की। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव यानी इसका मतलब राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेना e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। 1/2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। अब यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेरिवेटिव e टू द पावर kx का मालूम होना जरूरी है। इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर kx अगर होता e टू द पावर kx, तो हम लिखते e टू द पावर kx इंटू k, है ना? तो यहाँ पर e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही है, क्योंकि इंटू द 1x नथिंग मींस 1x है। प्लस प्लस क्यों आया देखिए यहाँ पर e टू द पावर माइनस का डेरिवेटिव आ जाएगा e टू द पावर माइनस x into again minus 1. This minus and this minus becomes plus. Therefore, result becomes e to the power x plus e to the power minus x divided by 2. अब इसको गौर करेंगे तो what is this? This is nothing but hyperbolic cos x. Hyperbolic cos x की कीमत है ये। इसका मतलब हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला हुआ है कि डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक sin x इज इक्वल टू हाइपरबोलिक cos x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो यहाँ पर हमको डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक sin x जो है वो हाइपरबोलिक cos x मिला हुआ। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट।
देखिए सेकंड हमें फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक cos x का. If y is equal to hyperbolic cos x, then find dy by dx. Again, by definition of hyperbolic cos x is equal to e to the power x plus e to the power minus x divided by 2. Okay, differentiate with respect to x. Left hand side becomes dy by dx. D by dx of this term, e to the power x plus e to the power minus x upon 2. 1 by 2 is common, take outside this one. D by dx of e to the power x plus e to the power minus x. E to the power x का डेरिवेटिव यहाँ पे e to the power x होगा, नो प्रॉब्लम. नाउ e to the power minus x का डेरिवेटिव हो जाएगा e to the power minus x into minus 1. Therefore this plus becomes here minus. Again see this one, it is again standard one, e to the power x minus e to the power minus x divided by 2. This is nothing but hyperbolic sin x. Therefore derivative of hyperbolic cos x is equal to hyperbolic sin x, है ना. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कंपेयर करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव वहां पे माइनस साइन एक्स है. देखिए डोंट कंफ्यूज यार, cos x का डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में माइनस साइन एक्स है, लेकिन यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन में डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक cos x इज हाइपरबोलिक साइन x. Now next example 3 means here we have to find the derivative of hyperbolic tan x. If y is equal to hyperbolic tan x, then find dy by dx. Now here y is equal to hyperbolic tan x is nothing but hyperbolic sin upon hyperbolic cos. जैसे sin x में हम tan x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम tan x को कैसे लिखते हैं, tan x is equal to sin x upon cos x. So similarly here hyperbolic tan x is nothing but hyperbolic sin x upon hyperbolic cos x. डिनोमिनेटर में रहने की वजह से जीरो नहीं रहना चाहिए, because it becomes otherwise it is meaningless. Now differentiate with respect to x. Left hand side dy by dx, no doubt. But as far as the right hand side is concerned, it is in the form of u by v, है ना. u by v के फॉर्म में है. यहाँ पे आपको डेरिवेटिव का कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा. What is the quotient rule? If y is equal to u by v, then dy by dx is equal to v as it is derivative of u minus u as it is derivative of v upon v square. यानी numerator as it is derivative of the denominator minus derivative as it is derivative of the numerator divided by denominator का square, है ना. सी न्यूमरेटर यहाँ पे हाइपरबोलिक साइन एक्स है, डिनोमिनेटर हाइपरबोलिक कॉस एक्स है. डिनोमिनेटर एज इट इज लिखिए डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर लिखिए एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर. जो भी रहने दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, आपको वही रूल्स फॉलो करना है u by v का. Now see here, first hyperbolic cos x as it is, डेरिवेटिव हाइपरबोलिक साइन एक्स हमने अभी फाइंड आउट किए थे, हाइपरबोलिक कॉस एक्स आ गया था, लिख दिए यहाँ पर, माइनस हाइपरबोलिक साइन एक्स यहाँ पर, फिर हाइपरबोलिक कॉस एक्स का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक साइन एक्स. ओके, एक्चुअली इट इज ओनली एक ही चाहिए, हाइपरबोलिक साइन एक्स डिवाइडेड बाय हाइपरबोलिक कॉस एक्स का स्क्वायर. नाउ दिस हाइपरबोलिक कॉस एक्स एंड दिस हाइपरबोलिक कॉस एक्स प्रोडक्ट हो जाएगा हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हाइपरबोलिक साइन एक्स, दिस हाइपरबोलिक साइन एक्स इसका स्क्वायर हो जाएगा हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स. But you see this numerator, again this numerator is one of the standard identity in the hyperbolic function. हाइपरबोलिक cos स्क्वायर एक्स माइनस हाइपरबोलिक साइन एक्स की वैल्यू हमेशा के लिए 1 रहती है. जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वैसा यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन में हाइपरबोलिक cos स्क्वायर एक्स माइनस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज 1. डिनोमिनेटर कीप एज इट इज हाइपरबोलिक cos स्क्वायर एक्स. This 1 upon hyperbolic cos square x is nothing, 1 by hyperbolic cos x is nothing but hyperbolic sec. जैसा trigonometric में 1 by cos is sec x, here यहाँ पे 1 by hyperbolic cos is nothing but sec this, but it is in the square form, therefore it is a sec hyperbolic sec square x. Therefore derivative of hyperbolic tan x is equal to hyperbolic sec square x. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ऐसी रिजल्ट है, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec square x. उसके बाद हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक cot x.
If y is equal to hyperbolic cot x, where x belongs to any real number, then find dy by dx. फिर हम hyperbolic cot x की वैल्यू के बारे में आपको मालूम है कैसे लिखते हो. hyperbolic cot x इज नथिंग बट hyperbolic cos अपॉन hyperbolic sin. ट्रिग्नोमेट्रिक में भी मालूम है आपको cot x की कीमत cos x अपॉन sin x रहती है ना. अगेन डिफरेंशिएट with respect to x, left hand side becomes dy by dx. Now right hand side, take the derivative of this u by v. Again apply the quotient rule. Here numerator is hyperbolic cos x, denominator is hyperbolic sin x. Denominator keep as it is, derivative of the numerator minus numerator as it is, derivative of the denominator divided by denominator square. Hyperbolic sin x as it is, इसका डेरिवेटिव हाइपरबोलिक sin x होगा, माइनस साइन एज इट इज, हाइपरबोलिक cos x एज इट इज, फिर हाइपरबोलिक sin x का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक cos x. Now this becomes this hyperbolic sin x into hyperbolic sin x becomes hyperbolic sin square x minus sin as it is, hyperbolic cos x into hyperbolic cos x, again it becomes hyperbolic cos square x. To convert it is in the standard form, you take the negative sign common. तो ये नेगेटिव जो पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव थी नेगेटिव हो जाए. ब्रैकेट में जो टर्म है देखिए आप, नेगेटिव तो बाहर है, ब्रैकेट में हाइपरबोलिक cos स्क्वायर एक्स माइनस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स. फिर से ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, इसकी कीमत एक होती है. इट इज 1 एंड इज माइनस साइन, देयरफॉर इट बिकम्स -1 डिवाइडेड बाय हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स. बट 1 अपॉन हाइपरबोलिक साइन एक्स की कीमत हाइपरबोलिक कोसेक होती है ना. Therefore, this 1 upon hyperbolic sine square x becomes minus sine as it is hyperbolic cosec square x. Therefore, derivative of hyperbolic cot x is equal to minus hyperbolic cosec square x. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस cosec स्क्वायर है, यहाँ पर भी वही आएगा रिजल्ट इस टाइप में. Next hyperbolic function is hyperbolic sec x. Let us find its derivative. If y is equal to hyperbolic sec x, then find dy by dx. Y is equal to hyperbolic sec x, लेकिन hyperbolic sec x को हम 1 upon hyperbolic cos x लिखते. Differentiate with respect to x, dy by dx, d by dx of this right hand side is 1 by hyperbolic cos x. यहाँ में numerator 1 है, denominator hyperbolic cos x. Again denominator keep as is, derivative of the numerator minus numerator as it is, derivative of the denominator, again divided by denominator square. Derivative of 1, it is a constant, therefore derivative is 0, is hyperbolic cos x into 0 minus 1 as it is, and derivative of hyperbolic cos x is hyperbolic sin x. Now dy by dx becomes, the first term in the numerator it is 0 because it is in the hyperbolic cos x into 0 is there, minus 1 into this hyperbolic sin x is hyperbolic sin x minus hyperbolic sin x divided by hyperbolic cos square x. इसको थोड़ा स्प्लिट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा मैंने, -1 अपॉन हाइपरबोलिक कॉस, ये हाइपरबोलिक कॉस एक्स जो है ना डिनोमिनेटर में, इसको हमने स्प्लिट किया, -1 अपॉन हाइपरबोलिक कॉस एक्स एक लिखा, फिर एक हाइपरबोलिक कॉस एक्स बाजू में लिखा, हाइपरबोलिक साइन अपॉन हाइपरबोलिक कॉस, यही टर्म है ना. अब 1 अपॉन हाइपरबोलिक कॉस एक्स की वैल्यू हाइपरबोलिक सेक एक्स है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, -1 एज साइन लिया मैंने यहाँ पे, और ये दो हाइपरबोलिक साइन अपॉन हाइपरबोलिक कॉस है, इसकी कीमत आपको मालूम है हाइपरबोलिक tan x. Therefore, derivative of hyperbolic sec x is equal to minus hyperbolic sec x into hyperbolic tan x. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव ऑफ sec x into tan x है, देखिए लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक sec x इज माइनस हाइपरबोलिक sec x into hyperbolic tan of x. Now let's next one. If y is equal to hyperbolic cosec x, if y is equal to hyperbolic cosec x, where x belongs to R, then find dy by dx. Y is equal to hyperbolic cos x. Hyperbolic cosec x nothing but 1 by hyperbolic sine. Okay. Now
differentiate with respect to x, dy by dx, d by dx of this right hand side 1 upon hyperbolic sin x. Again numerator is 1, denominator is here hyperbolic sin x. Apply the quotient rule. Denominator as it is derivative of the numerator minus numerator as it is derivative of the denominator divided by denominator square. Actually here it is hyperbolic sin x चाहिए यहाँ पे. Hyperbolic sin x into derivative of 1 is 0 minus 1 as it is derivative of hyperbolic sin x is hyperbolic cos x. Okay, product is 0 here, minus 1 into this hyperbolic cos x as it is. Therefore the result is minus hyperbolic cos x divided by hyperbolic sin square x. So that is nothing but it is equal to minus 1 divided by hyperbolic sin x into hyperbolic cos x divided by hyperbolic sin x. देखिए इसको स्प्लिट किया मैंने यहाँ पे, है ना. हाइपरबोलिक cos x को थोड़ा बाजू में लिखा, माइनस 1 अपॉन दिस. अब ये माइनस 1 अपॉन हाइपरबोलिक sin x इज नथिंग बट हाइपरबोलिक cos x बनेगा इसकी वैल्यू, है ना. और ये जो नेक्स्ट है हाइपरबोलिक cos अपॉन हाइपरबोलिक sin, ये आपको फिर से आप मिलेगा हाइपरबोलिक cot. देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक cos x जो मिला हुआ है यहाँ पर माइनस हाइपरबोलिक cosec x into hyperbolic cot x. Okay, so in this way I have discussed here the derivative of hyperbolic function and hyperbolic sin x, hyperbolic cos x, उसके साथ hyperbolic tan x, hyperbolic cot x, hyperbolic sec x and finally derivative of hyperbolic cosec x. क्या रिजल्ट मिला था आपको, देखिए पहले इसमें हाइपरबोलिक sin x का डेरिवेटिव जो है हाइपरबोलिक sin x का डेरिवेटिव हमें मिला था हाइपरबोलिक cos x, है ना. सेकंड हाइपरबोलिक cos x का डेरिवेटिव मिला था हाइपरबोलिक sin x. उसके बाद हाइपरबोलिक tan x का डेरिवेटिव क्या मिला था हाइपरबोलिक sec square x. हाइपरबोलिक cot x का डेरिवेटिव क्या था देखिए माइनस हाइपरबोलिक cosec square x. हाइपरबोलिक sec x का डेरिवेटिव माइनस हाइपरबोलिक sec x into hyperbolic tan x. And lastly I have got the derivative of hyperbolic cosec x is minus hyperbolic cosec x into hyperbolic cot x. Now I will discuss on the derivative of inverse hyperbolic function. हमने अभी तक हाइपरबोलिक फंक्शंस का को डिफाइन किया था, फिर उसके बाद उसके डेरिवेटिव डिफाइन किया. अब इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन हमको मालूम है, हमने स्टडी की हुई कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हाइपरबोलिक साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ एक्स, cot इनवर्स ऑफ एक्स. इन दिस वे here I will discuss on the derivative of inverse hyperbolic functions. Inverse hyperbolic function. If y is equal to hyperbolic sin inverse of x, then find dy by dx. देखिए हाइपरबोलिक साइन इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. हाइपरबोलिक साइन इनवर्स ऑफ एक्स कैसा पढ़ेंगे इसको, हाइपरबोलिक साइन इनवर्स एक्स, hyperbolic sin inverse of x. y is equal to hyperbolic sin inverse of x. उसके बाद की स्टेप आपको ये समझ में आना चाहिए. देखिए अब y is equal to hyperbolic sin x अगर है तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x एज इट इज रहेगा, दिस नथिंग बट साइन हाइपरबोलिक इधर जाके इनवर्स इसका रिमूव हो जाएगा, वो होगा हाइपरबोलिक साइन y. देखिए ट्रांसफर कैसा हो रहा हो, y is equal to साइन इनवर्स हाइपरबोलिक साइन इनवर्स ऑफ x अगर है तो हम x को लिख सकते इट ट्रांसफर ऑन दिस वन, दैट इज नथिंग बट हाइपरबोलिक साइन y. दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप. अब जैसा पहले डेरिवेटिव निकालते वैसे ही निकालना है, लेकिन पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. इनवर्स में था, ये टर्म सेकंड टर्म बगैर इनवर्स वाली है. देखिए आप देयरफॉर x इज इक्वल टू हाइपरबोलिक साइन y. ये कन्वर्शन आपको समझ में आना चाहिए. x यहीं से समझ के चलो, इनवर्स इधर चले जाएगा, है ना, तो ये बिकम हाइपरबोलिक साइन y. अब लेफ्ट में x है, राइट में फंक्शन ऑफ y हो गया. यहाँ पे y था लेफ्ट में, राइट में x था. अब इनवर्स में देखिए लेफ्ट में x, राइट में y इन द फंक्शन ऑफ y है ना. इसलिए हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इसके पहले x
ले रहे थे, यहाँ पे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। देखिए differentiate with respect to y because right hand side is y and left hand side is x. Therefore, when you differentiate this with respect to y, the left hand side becomes dx upon dy, and the derivative of hyperbolic sine y is hyperbolic cos y, है ना? Derivative of hyperbolic sine y is hyperbolic cos y. नाउ अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या किया यहाँ पे, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, उल्टा कर दिया उसको। क्या होगा, हम क्यों क्यों उल्टा कर रहे हैं, हम हमको dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको मिला हुआ है dx by dy, when you take its reciprocal then it becomes dy by dx, है ना? dy by dx is equal to ये hyperbolic cos of y upon 1 था, उल्टा हो जाएगा 1 upon hyperbolic cos y। हाँ नेक्स्ट इज इक्वल टू कैसा लिखा हुआ देखो मैंने, इसके बाद जो लिख रहा हूं मैं 1 अपॉन अंडर रूट हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर वाई। देखिए हाइपरबोलिक कॉस वाई को मैं ऐसा लिख सकता स्क्वायर रूट में, क्योंकि समझो 2 है, 2 को मैं लिख सकता अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ 4 या तो अंडर रूट प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 4, दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, 2 स्क्वायर फिर 4 फिर 2 स्क्वायर फिर से 4, यानी प्लस माइनस रहने दो, कुछ भी रहने दो, दैट इज स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव होगा। इसलिए हाइपरबोलिक कॉस वाई की वैल्यू अंडर रूट हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर वाई प्लस और माइनस। देखिए आपको एक आइडेंटिटी, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हाइपरबोलिक फंक्शन की मालूम है, यानी हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर को, हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर वाई को मैं ऐसे लिख सकता अंडर रूट 1 प्लस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर वाई। देखिए इसको, इसकी वैल्यू मैंने लिखा 1 प्लस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर वाई यूजिंग द स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ द हाइपरबोलिक फंक्शन। अब ये कन्वर्ट क्यों कर रहा देखिए, क्योंकि मुझे हाइपरबोलिक साइन वाई की वैल्यू मालूम है। हाइपरबोलिक साइन वाई की वैल्यू क्या है, x, यहाँ पे रख दो। देखिए प्लस और माइनस 1 अपॉन अंडर 1 प्लस अब होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हाइपरबोलिक साइन वाई की वैल्यू x आ गया, डी वाई बाई डी एक्स अपना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रिजल्ट x में मिलना चाहिए था, मिल गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब पॉजिटिव साइन लेना या नेगेटिव ला, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना। डी वाई बाई डी एक्स तो मिल गया हमको, अब दोनों में से कौन सी वैल्यू लेना, पॉजिटिव लेना या माइनस लेना या दोनों भी लेना है। अब देखिए वेयर साइन ऑफ द रेडिकल, यानी ये जो साइन है इज सेम एज दैट ऑफ हाइपरबोलिक कॉस वाई। हाइपरबोलिक कॉस वाई पे डिपेंड करता है, उसकी साइन जो है कहीं पे डिपेंड करती है, रेडिकल साइन हाइपरबोलिक कॉस वाई, लेकिन हमेशा हाइपरबोलिक कॉस वाई पॉजिटिव रहता है, इसलिए वहां पर नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है। Therefore lastly I got this result, derivative of hyperbolic sin x is equal to 1 upon under root 1 plus x square। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अलग रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे देखिए ये है डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए फिर से एक बार देखिए इसको, पहले y इज इक्वल हाइपरबोलिक साइन x, इसको ट्रांसफॉर्म कर लो, आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा x इज इक्वल हाइपरबोलिक साइन y, लेफ्ट में x राइट में फंक्शन ऑफ y, यानी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y ले लो, dx बाई dy हाइपरबोलिक साइन y का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक कॉस y, स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें मालूम है, लिख दो यहाँ पे। देयरफॉर देन यू टेक इट्स रेसिप्रोकल, देयरफॉर उल्टा कर दो इसको, dy बाई dx बाई dy को ये हो जाएगा dy बाई dx, राइट हैंड साइड हो जाएगा 1 अपॉन हाइपरबोलिक कॉस y, प्लस और माइनस लिख के उसको मैं लिखा 1 अपॉन अंडर रूट कॉस, ये दोनों की समझ सेम है, नो प्रॉब्लम। ये चेंज क्यों कर रहा देखिए, क्योंकि हमको रिजल्ट हमको इन टर्म्स ऑफ x लाना है, यहाँ पे राइट हैंड में इन टर्म्स ऑफ y है रिजल्ट, यहाँ पे भी इन टर्म्स ऑफ y प्लस और माइनस, लेकिन इसको मैं ये आइडेंटिटी को ऐसे लिख सकता, ये हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर को ऐसे लिख सकता 1 प्लस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर y यूजिंग द स्टैंडर्ड आइडेंटिटी ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। Now put the value of hyperbolic sin y, it is x, therefore dy by dx becomes 1 plus or minus 1 upon under root 1 plus x square,
Actually, where the sign of the radical is same as that of the hyperbolic cos y, but hyperbolic cos y is always positive. Therefore, I have taken here only positive sign. Therefore, derivative of hyperbolic sine inverse of x is equal to 1 upon under root 1 plus x square. ये होगा derivative of hyperbolic sine inverse of x. Similarly, I will try to find the derivative of hyperbolic cos inverse of x. If y is equal to hyperbolic cos inverse of x, then find dy by dx. Here give y is equal to hyperbolic cos x as it is लिख दो. फिर आपको मैं इसके पहले बताया था वैसा क्या होगा x की वैल्यू, therefore x becomes hyperbolic cos y. Hyperbolic cos y. Left में x, right में function of y. Differentiate with respect to y, not x. Differentiate with respect to x, y. So it becomes dx by dy. राइट में होगा हाइपरबोलिक cos x का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक sin y. इसका डेरिवेटिव आपको मालूम है हाइपरबोलिक cos x का हमने अभी थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किए हुए हैं हम. हाइपरबोलिक sin का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक cos का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक tan का डेरिवेटिव. वैसा हाइपरबोलिक cos y का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक sin y. फिर रेसिप्रोकल ले लो इसके पहले जैसा लिए थे. dx by dy becomes dy by dx उल्टा कर दिए. इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन हाइपरबोलिक sin y. स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लाने के लिए प्लस और माइनस 1 अपॉन अंडर हाइपरबोलिक sin स्क्वायर y लिख दो यहाँ पर. फिर हाइपरबोलिक फंक्शन की स्टैंडर्ड आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर दो. प्लस और माइनस 1 अपॉन हाइपरबोलिक cos स्क्वायर y माइनस 1. हाइपरबोलिक sin स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं हाइपरबोलिक sin स्क्वायर y इज इक्वल टू हाइपरबोलिक cos स्क्वायर y माइनस 1. हाइपरबोलिक cos y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. हाइपरबोलिक cos y x है ना. यहाँ पे ये होगा dy by dx इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1. ये cos हाइपरबोलिक cos y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये रिजल्ट मिल रहा. फिर प्लस और माइनस की बात आ रही. कौन सी साइन लेना है यहाँ पे. वेयर द साइन ऑफ द रेडिकल इज सेम एज दैट ऑफ हाइपरबोलिक साइन y. इसका मतलब हाइपरबोलिक cos इनवर्स x जो है हमेशा पॉजिटिव रहता, लेकिन उसकी हाइपरबोलिक cos x की वैल्यू y है. y जब पॉजिटिव है इसका मतलब हाइपरबोलिक साइन y भी पॉजिटिव होना चाहिए. इसका मतलब प्लस और माइनस के बदले सिर्फ आप प्लस ले सकते हैं. देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक cos इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. इसके पहले रिजल्ट मिला था हमको हाइपरबोलिक साइन क्या क्या मिला दिया. हाइपरबोलिक साइन इनवर्स ऑफ x का रिजल्ट मिला था अंडर 1 अपॉन अंडर 1 प्लस x स्क्वायर. और यहाँ पर हाइपरबोलिक जो cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव मिल गया हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1. अब देखिए रिजल्ट नंबर 3 और डेरिवेटिव ऑफ द हाइपरबोलिक tan इनवर्स ऑफ x. क्या है ये. इफ y इज इक्वल टू हाइपरबोलिक tan इनवर्स ऑफ x, तो कंडीशन दी हुई है मॉड x इज लेस देन 1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x की कीमत 1 से छोटी रहना चाहिए. देन फाइंड dy बाय dx. देखिए y इज इक्वल टू हाइपरबोलिक tan x एज इट इज लिख दो. फिर ट्रांसफर कर लो आप. क्या होगा ये x इज इक्वल देयरफॉर x इज इक्वल टू हाइपरबोलिक tan y. ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहन में रखिए. सेकंड स्टेप जो है क्योंकि यहाँ पे हमको डेरिवेटिव लेना है बगैर इनवर्स के, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको इसमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किए. x इज इक्वल टू हाइपरबोलिक tan y हो गया है. अब लेफ्ट में x राइट में फंक्शन ऑफ y है, यानी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y. लेफ्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा dx अपॉन dy. हाइपरबोलिक tan y का डेरिवेटिव हमने अभी फाइंड आउट किए थे थोड़ी देर पहले, वो आ गया था हाइपरबोलिक sec स्क्वायर y. यहाँ लिख दो. नाउ टेक इट्स रेसिप्रोकल, है ना, उल्टा करना है dx by dy को. क्यों उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि आपको फाइंड आउट करना है dy by dx. यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे मिला हुआ आपको dx by dy, इसलिए रेसिप्रोकल ले रहे हैं हम. Therefore dy by dx is equal to 1 upon hyperbolic sec square y. अब यहाँ पर आपको ये आइडेंटिटी मालूम रहना जरूरी है, इसके बगैर इसको हम आगे बढ़ नहीं सकते. 1 अपॉन ये आइडेंटिटी याद रखना है आपको. हाइपरबोलिक sec स्क्वायर y हमेशा होगा 1 माइनस हाइपरबोलिक tan स्क्वायर y, है ना. ट्रिग्नोमेट्रिक में 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल sec स्क्वायर है. देखिए यहाँ पर हाइपरबोलिक sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस हाइपरबोलिक tan स्क्वायर y. 1 माइनस हाइपरबोलिक tan y, यहाँ पे प्लस और माइनस लिखने की जरूरत नहीं, इट इज ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में आया हुआ है. स्क्वायर फॉर्म में आ गया हुआ है, इसलिए
प्लस और माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। वन माइन आइडेंटिटी, ये हाइपरबोल टेन स्क्वायर, टेन हाइपरबोल टेन वाई की वैल्यू मालूम है कितनी है, एक्स। देयरफॉर द रिजल्ट इज 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर देखिए यहाँ पे कंडीशन x इज इक्वल टू 1 रहता था फॉर एग्जांपल हियर, देन इट बिकम्स 1 - 1 0, इसलिए कंडीशन दिया है कि इट इज लेस देन 1 बोल के। therefore dy by dx डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक tan inverse of x is always equal to 1/1 minus x square। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कुछ याद आ रहा है, देखो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अगर होता तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है वहां पे, लेकिन हाइपरबोलिक में डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक साइन इनवर्स x का रिजल्ट मिला हुआ है आपको यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। Let us see the next inverse function, that is if y is equal to hyperbolic cot inverse of x, यहाँ पे mod x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, देन फाइंड dy by dx। फिर से लिखो y is equal to hyperbolic cot inverse of x, कन्वर्ट कर दो इसको, therefore x is equal to hyperbolic cot y। देखिए कन्वर्शन देखिए यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, therefore dx अपॉन dy इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक कॉट मालूम है आपको, है ना, हाइपरबोलिक कॉट एक कॉट y का डेरिवेटिव है माइनस हाइपरबोलिक कोसेक स्क्वायर y, dx by dy इज इक्वल टू माइनस हाइपरबोलिक कोसेक स्क्वायर y। रेसिप्रोकल ले लो उसका, dy by dx, ये हो जाएगा 1 अपॉन हाइपरबोलिक कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन 1 अपॉन हाइपर माइनस साइन एज इट इज, हाइपरबोलिक कोसेक स्क्वायर की वैल्यू है हाइपरबोलिक कॉट स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब देखिए आइडेंटिटी फिर से मालूम है ना जरूरी, यानी रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक कॉट एंड हाइपरबोलिक कोसेक। इसके पहले रिलेशन हमने देखे थे हाइपरबोलिक टैन, हाइपरबोलिक सेक, यहाँ पर हाइपरबोलिक कॉट और हाइपरबोलिक कोसेक स्क्वायर का रिलेशन ये है, यानी हाइपरबोलिक कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं हाइपरबोलिक कॉट स्क्वायर माइनस 1। ये रेसिप्रोकल लेने की बात है, dx बाई dy, यहाँ पर dy बाई dx है, यानी ये होगा पहले माइनस 1 अपॉन हाइपरबोलिक कोसेक स्क्वायर y होगा, फिर वो हाइपरबोलिक कोसेक स्क्वायर y की वैल्यू लिखना है हाइपरबोलिक कॉट स्क्वायर y माइनस 1, दैट इज इक्वल टू एज इट इज माइनस साइन एज इट इज हाइपरबोलिक कॉट y की वैल्यू आपको मालूम है, इट इज x, है ना, माइनस एज इट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक cot inverse of x is always is equal to minus 1 upon x square minus 1। नेक्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव हम डिस्कस करेंगे, वो है हाइपरबोलिक सेक इनवर्स x। थोड़ा देखिए अब यहाँ पर, if y is equal to hyperbolic sec inverse of x, then find dy by dx। y is equal to hyperbolic sec inverse as it is, अगेन ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फॉर्म, देयरफॉर x इज इक्वल टू हाइपरबोलिक सेक y होगा, ये x इधर आ जाएगा, y इधर, दैट इज हाइपरबोलिक सेक y, या तो ये सेक इनवर्स को इधर लेके चले जाएंगे तो इट बिकम सेक y, x एज इट इज। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स dx अपॉन dy। अब यहाँ पर आप, मगर मम्मी उनका साल पिछले जाओ ना लेकर के अभी ये भी तो लेते नहीं ना सामने वाला एडमिशन, हर मम्मी क्या बी टाइम पे एडमिशन होते क्या, एग्जाम से 6 महीने पहले एडमिशन लेना पड़ता है, एग्जाम मैं अभी आवाज आ रही है, नहीं होता उनका एडमिशन, चुपके चुपटी से लेके जाएगा उनके यहाँ पढ़ेंगे फिर, और अगले साल 12वीं में एडमिशन लेना पड़ता। ओके, x is equal to hyperbolic sec y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव ले लो, इट बिकम dx by dy, ये होगा माइनस हाइपरबोलिक सेक y इंटू हाइपरबोलिक टैन y, हमने अभी फाइंड आउट किए थे इसका डेरिवेटिव, हाइपरबोलिक सेक y का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक सेक y इंटू हाइपरबोलिक टैन y। रेसिप्रोकल ले लो, dy by dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन हाइपरबोलिक सेक y इंटू हाइपरबोलिक टैन y। आप देखिए यहाँ पे ये माइनस 1 अपॉन एज इट इज, ये हाइपरबोलिक सेक y एज इट इज। अब ये हाइपरबोलिक टैन y को मैं क्या लिख रहा, देखिए हाइपरबोलिक टैन y को स्क्वायर रूट में लिख रहा, हाइपरबोलिक टैन स्क्वायर y, स्क्वायर रूट में स्क्वायर लिख रहा, इसलिए ये होगा प्लस और माइनस। थोड़ा स्टेप पे ध्यान दीजिए,
-1 एज इट इज, हाइपरबोलिक सेक वाई एज इट इज। सिर्फ मैं कन्वर्ट किसको कर रहा है यहाँ पे, हाइपरबोलिक tan वाई प्लस और माइनस दिस वन। अब ऐसे क्यों करा, देखिए यहाँ पे हाइपरबोलिक सेक वाई की वैल्यू मालूम है हमें x, लेकिन हाइपरबोलिक tan वाई की मालूम नहीं है, हमको इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। तो मैंने इसको लिखा पहले अंडर रूट हाइपरबोलिक tan स्क्वायर y, फिर प्लस और माइनस साइन एज इट इज, -1 एज इट इज, हाइपरबोलिक साइक y एज इट इज। आप यहाँ पर आइडेंटिटी का इस्तेमाल कीजिए। हाइपरबोलिक tan स्क्वायर y को लिख सकता मैं 1 माइनस हाइपरबोलिक सेक स्क्वायर y, है ना, 1 माइनस हाइपरबोलिक सेक स्क्वायर y प्लस और माइनस एज इट इज, -1 एज इट इज। आपको मिल गई वैल्यू, क्योंकि हमने कन्वर्ट किया tan को सेक में, या स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, 1 माइनस हाइपरबोलिक सेक स्क्वायर x सेक स्क्वायर y है, हाइपरबोलिक सेक y x, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए यहाँ पर x, हाइपरबोलिक सेक y की वैल्यू x है, x रख दिया, फिर यहाँ पर भी x रख दो, प्लस और माइनस -1 डिवाइडेड बाय x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। आप यहाँ पर प्लस लेना या माइनस लेना, वेयर द साइन ऑफ द रेडिकल इज सेम एज दैट ऑफ हाइपरबोलिक tan y पे डिपेंड रहेगा ये साइन, वो हमेशा पॉजिटिव रहता, इसलिए ये प्लस और माइनस में से सिर्फ प्लस लेना है। ये तो ऑलरेडी माइनस पहले एज इट इज रहेगा। इसका मतलब हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा हाइपरबोलिक सेक इनवर्स x, हाइपरबोलिक सेक इनवर्स x का वो रहेगा -1 अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 डिवाइडेड बाय x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक सेक इनवर्स ऑफ x। अभी एक बचा हुआ है हाइपरबोलिक कोसेक इनवर्स ऑफ x, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो हमने आज के लेक्चर में डेरिवेटिव फाइंड आउट किए, पहले डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक साइन, हाइपरबोलिक कॉस मिला, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक कॉस एक्स फाइंड आउट किए, वो मिला आपको डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक कॉस एक्स हाइपरबोलिक साइन। उसके बाद हाइपरबोलिक tan एक्स की डेरिवेटिव फाइंड आउट किए, तो वो मिला था हाइपरबोलिक सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव फाइंड आउट किया हाइपरबोलिक कॉट एक्स, उसका डेरिवेटिव मिला था माइनस हाइपरबोलिक कोस एक्स स्क्वायर एक्स। फिर वाई डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, हाइपरबोलिक सेक एक्स, वो मिला था माइनस हाइपरबोलिक सेक एक्स इंटू हाइपरबोलिक tan एक्स। फिर इफ y इज इक्वल हाइपरबोलिक कोसेक एक्स, तो डेरिवेटिव मिला था माइनस हाइपरबोलिक कोस एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर उसके बाद इनवर्स डेरिवेटिव डिस्कस किए, तो डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक साइन इनवर्स जो मिला था वो मिला था 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद डिस्कस किए थे हाइपरबोलिक कॉस इनवर्स के बारे में। इफ y इज इक्वल हाइपरबोलिक कॉस इनवर्स ऑफ x, तो डेरिवेटिव मिला था 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और tan का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव मिला था 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाइपरबोलिक कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव मिला था -1 अपॉन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड लास्टली हाइपरबोलिक सेक इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव मिला था -1 अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो tomorrow I will discuss the next derivative of hyperbolic cosec inverse of x and the next articles. Okay, today I want to stop here. If you have any difficulty or any query regarding the today's lecture, you can ask me. आज के लेक्चर के बारे में कोई डाउट्स वगैरह है तो मुझे आप पूछ सकते, अदरवाइज आई विल स्टॉप हियर। अब हमारे पास अभी 1 मिनट बाकी है, अगर डिस्कस करना है तो कर सकते हैं आप। If you have any query, if you have any problem related with today's lecture, okay, you can ask me. Yes, any doubt? No, sir. Okay, let us stop here.